A very good morning to all students. In the last video of class 12th accountancy, we discussed a lots of practical problem related to the dissolution of the partnership firm. You know very well when any firm dissolve. So in this situation, there are basically four accounts are prepared. The first one is a realization account. The second one is a partner's loan account. The third one is a partner's capital account, and fourth one is a bank and cash account. And you can remember the thing. In the last video, we discussed the illustration number 8, and in this question, I was given a necessary journal entry related to this question, and relation account, partners capital account, partners loan account, and bank and cash account are incomplete. So now in today's video, first of all we discuss this question, and after that we will move to the next topic of this chapter. So the first one is illustration number 8, and आपको रिवाइज करने के लिए मैं याद दिला दूं कि इस क्वेश्चन का हम लोगों ने कल जनरल एंट्री डिस्कस किया था, इसके अकाउंट्स डिस्कस नहीं किए थे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो हम इसका पूरा पहले कंप्लीट कर देते हैं जो हमने कल इस पर डिस्कशन किया था. द क्वेश्चन इज ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They agreed to dissolve the firm. The balance sheet of the firm on that date was as follows: bank overdraft 4,000, creditor 30,000, bills payable 6,000, B's wife loan 10,000, capital of A 70,000 and B 70,000, and the debtors 40,000, stock 50,000, furniture 2,000, fixed assets 49,000, prepaid expense 1,000, profit and loss 40,000, C's capital is 8,000. So the total of the balance sheet is 1,90,000. So here it is given us 6 important adjustment in this question. The first one is the assets realized as follows: stock 32,000, fixed is 45,000, and full amount was received from the debtor. A agreed to take over the furniture 1,600 and also agreed to make up the payment of bills payable. So you know very well कि अगर कोई पार्टनर एसेट्स लेता है तो उसकी कैपिटल को डेबिट करते हैं, और अगर लाइबिलिटी लेता है तो उसकी कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी दैट द एंट्री विल बी ए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, A account debit to realization account, that is 1,600 for the furniture taken away by A. The second entry, A agreeing to discharge the liability of bills payable, so the entry will be realization account debit to A, amount will be 6,000 and 6,000. The third one is B agreed to discharge his wife loan. B ने एग्री किया, वो वाइफ का लोन पे कर देगा. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन सी कि B ने लाइबिलिटी लिया है तो लाइबिलिटी केस में उसकी कैपिटल क्रिएट होगी. द एंट्री विल बी रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, दैट इज 10,000 and 10,000. द नेक्स्ट वन, नंबर 4, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स 10,000 विच वॉज टेकन ओवर बाई सी एट 7,000. सो वहाँ एक 10,000 रुपये की अनरिकॉर्डेड एसेट्स जिसे सी ने 7,000 रुपये में ले लिया. सो द एंट्री विल बी, पहले तो आपको अनरिकॉर्डेड एसेट्स हुआ और उसको फिर सी ने 7,000 रुपये में ले लिया. सो द एंट्री विल बी सी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट इज 7,000. And next, bills receivable of 5,000 was received from a customer Mohan, and the bill was discounted from the bank. Mohan became the insolvent and 60 paise per rupee has been received from the state. So bills receivable था 5,000 रुपये का, हमें कितना मिला मोहन से? we get a 60% from the Mohan, that is a 3,000, यानी ये हमें रिसीव हुआ मोहन से, और हमें बैंक को कितना पे करना है? वी हैव टू पे द बैंक, दैट इज़ 5,000, क्योंकि बैंक से हमने डिस्काउंट कराया था तो बैंक को तो पूरा पैसा देना पड़ेगा. सो यू कैन सी दैट द एंट्री विल बी फर्स्ट द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द मोहन, दैट इज़ अ बैंक अकाउंट डेबिट टू रिलेशन, दैट इज़ 3,000 and 3,000, and second is the paid to bank the amount of bill discounted, that is 5,000 and 5,000. So after completing the 5 journal entry, now we will move to the realization account. So you know very well, first of all we transfer all the assets and all the liabilities to the credit and debit side respectively of the relation account. So you can see that कि इसमें कौन कौन सी assets जाएगी, कौन कौन सी नहीं जाएगी. तो you know very well, debtors, stock, furniture, fixed as a prepaid expense are transferred to the debit side of the partners, debit side of the relation account at their book value, as well as bank overdraft, creditors, bills payable are transferred to the credit side of the relation account
at their book value, because B's wife loan is taken as well as the B's wife loan is also transferred to the relation account, because it is also external liabilities. So first of all, you can see the format of the relation account. So data 40,000 is stock, 50,000 is furniture, 2,000 fixed assets, 49,000 prepaid expense, 1,000 creditors, 30,000 bills payable, 6,000 B's वाइफ लोन इज 10,000. सो मैंने लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया, एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया रिलेशन अकाउंट में. एंड नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ द रिलेशन अकाउंट, दैट इज़ द रियलाइजेशन ऑफ द एसेट्स. सो जब हम एसेट्स को रियलाइज़ करते हैं तो यू नो वेरी वेल कि कुछ एसेट्स कैश में रियलाइज़ होती हैं और कुछ एसेट्स जो होती हैं वो किसी पार्टनर के थ्रू टेक ओवर कर ली जाती है. तो एडजस्टमेंट नंबर 1 में 32,000 स्टॉक से, 45,000 फिक्स एसेट से और डेटर से 40,000. सो टोटल 95, 45 अगर हम बात करें तो 40,000 फ्रॉम द डेटर, 45,000 फ्रॉम द फिक्स एसेट्स एंड 32,000 फ्रॉम द स्टॉक. सो टोटल 1,17,000 rupees must be received from the sale of the assets in cash. So you can see that the entry by bank sale of asset, that is 1,17,000. So because this amount is recovered from the stock, data and fixed assets. The next one is A agreed to take over the furniture. A ने फर्नीचर ले लिया. So the entry will be A's capital account 1,600. So A ने assets लिया, so you know very well by A's capital this is also recovered, and A also takes the liabilities, so it will be posted in the debit side of the relation. You know very well कि जब भी कोई assets लेता है तो रियलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन फील दैट कि ये फ़ायदा है किसी भी एसेट्स को सेल करना, चाहे वो कैश में सेल हो गया, चाहे वो किसी पार्टनर ने ले लिया. और रही बात लाइबिलिटी ले लेता है तो इट इज़ अ लॉस, क्योंकि हमें उसे तो पे करना पड़ेगा. सो रिलेशन के डेबिट साइड, या आप अपोजिट साइड में भी पोस्ट कर सकते हैं. यू नो वेरी वेल कि एसेट्स को हमने पोस्ट किया है डेबिट में. सो जब भी उसका रिलेशन होगा तो उसको क्रेडिट में लिखेंगे, चाहे वो पार्टनर दे, चाहे वो कोई भी कैश में रिकवरी हो. एज वेल एज वही सिचुएशन मैंने आपको बार बार बताई कि अगर लाइबिलिटीज़ को कोई टेक ओवर करता है, सो लाइबिलिटीज़ को हम पोस्ट करते हैं क्रेडिट में रिलेशन की, तो उसको रिकवरी जो होती है वो डेबिट में करेंगे. और इसमें कई सारी चीज़ें यू कैन सी डेट कि बी ने अपनी वाइफ का लोन एग्री किया, तो बी का जो वाइफ लोन है वो रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट में है. तो जब भी उसकी रिकवरी लिखेंगे वो देखिए यहाँ पर है, तो उसकी रिकवरी हमेशा उसके अपोजिट साइड में लिखेंगे जो जिसने उसकी लाइबिलिटी ली. तो लाइबिलिटी विल बी टेक ओवर बाय द बीज at this 10,000. So it is very easy. According to me, the preparation of relation account is too easy. The next one is there is an unrecorded asset 10,000 and is taken over by C. So you know very well C ने unrecorded assets ले ली, तो ये भी देखिए assets इधर लिखते हैं, इधर ट्रांसफ़र होता है डेबिट साइड में. So it will be written on the credit side of the relation account. So the C's capital 7,000. Now the next point is point number 5, bills receivable. You know very well इसमें 2 एंट्री पास हुई थी, क्योंकि आपको 3,000 रुपये मिला था आपके बिल्स रिसेबल वाले से और 5,000 रुपये आपने बैंक को दिया था. तो 3,000 रुपये की आपकी प्रॉफिट हो गई ऑन द रियलाइजेशन और 5,000 रुपये का आपका लॉस हो गया क्योंकि आपने पैसा दिया. सो 3,000 रुपये जो पैसा आपने मिला उसे आपने क्रेडिट में लिख लिया और जो 5,000 दिया उसे आपने डेबिट में लिख दिया. सो इट इज़ वेरी इजी. किसके थ्रू दिया? बैंक के थ्रू दिया. सो आपने बेसिकली सारी चीज़ें कर ली और एक चीज़ बच गई, वो है क्रेडिटर्स. एट द लास्ट यू कैन सी डेट कि क्रेडिटर्स को आपने 1,500 रुपये डिस्काउंट पे पे किया. तो टोटल क्रेडिटर्स कितने थे? तो टोटल क्रेडिटर्स फेयर 30,000 और 30,000 था, 1,500 रुपये डिस्काउंट हो गया. सो रिमेनिंग अमाउंट पेड टू द क्रेडिटर्स डेट इज़ 28,500. तो ये भी आपको पे करना है. सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेंस. सो द फर्स्ट वन इज़ आपने सारी एसेट्स को ट्रांसफ़र कर दिया इन द डेबिट साइड रिलेशन अकाउंट. देयर आफ्टर आपने सारी लाइबिलिटीज़, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र किया इन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिलेशन. देयर आफ्टर आपने एसेट्स को सेल किया, चाहे वो कैश में सेल हुआ या किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया. सो इट विल बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द रिलेशन. नंबर 4, पेड द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, सो इट विल बी पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ द रिलेशन अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट में आप ट्रांसफ़र किए थे रिलेशन में लाइबिलिटीज़ को, तो जब उसका पेमेंट करोगे तो डेबिट में लिख दोगे.
उसी तरह से कोई भी अदर थिंग्स लॉस एंड प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट से अगर आप टेक ओवर करेंगे तो यू कैन फाइंड दैट रियलाइजेशन अकाउंट्स टोटली एज अ नेचर ऑफ द नॉमिनल अकाउंट. So if there is an any loss on realization, so it will be debited, and if there is an any profit on realization, so it will be a credited. So after the preparation of the realization account, so now we will move to the capital account. So first of all, you can see that the quotient, in this quotient you find that the opening balance of the capital, that is A 70,000 and for B 70,000, and there is a accumulated losses. यहाँ पे accumulated loss है तो उसको भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में राइट डाउन करेंगे. तो यहाँ पे तीन चीज़ें देखनी ज़रूरी है. फर्स्ट वन इज़ ए का कैपिटल, बी का कैपिटल और सी का कैपिटल. तो ए और बी का कैपिटल तो क्रेडिट में लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, और सी का कैपिटल डेबिट में लिखेंगे. वहीं प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है तो ये तीनों के पार्टनर के बीच में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज़ 2:1. तो पहले आप देख लो. और रियलाइजेशन पे आपको क्या हुआ था, लॉस हुआ था. The total loss on realization is 16,900 and it will be distributed by A, B, C in the profit sharing ratio, that is 6,760 for A and B and 3,380 for C. So first of all, we write down the opening balance. You can see the format of the capital account. By balance BD 70,000 and the opening balance of the C is debited, so it will be 8,000. After that, यू राइट डाउन द लॉसेस. ये इतनी चीज़ें तो आपको क्लियर हो गई. अब आफ्टर डैट यू नो वेरी वेल, कुछ पार्टनर्स ने एसेट्स लिए और कुछ पार्टनर्स ने लाइबिलिटीज़ लिए. सो इट इज़ वेरी इजी कि आपने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को देखे और जहाँ जहाँ पार्टनर्स के नाम हैं उनके अपोजिट साइड में उसकी रिकॉर्डेशन करिए. जैसे यू कैन सी दैट इन दिस क्वेश्चन कि यहाँ पे एज कैपिटल है, यहाँ पे फिर सीज कैपिटल है. सो ए कैपिटल भी इधर रिकॉर्ड होगा, सी कैपिटल भी रिकॉर्ड होगा. किस अकाउंट से रिकॉर्ड होगा, रिलेशन. सो क्योंकि वो क्रेडिट में रिकॉर्ड है रिलेशन अकाउंट में, तो इट विल अफेक्ट दी डेबिट ऑफ द रिलेशन अकाउंट. अगर आप रिलेशन अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो आपको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि आपके एसेट्स किसी ने ले लिए, अब वो आपको पे करेगा उसकी अमाउंट. और कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, तो अब उसकी कैपिटल कम हो जाएगी ना. वाई, बिकॉज ऑफ अब उसे फर्म को पैसा देना पड़ेगा उस एसेट्स की. उसी तरह से लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो ए ने बी बिल्स पेबल ले लिया है और बी ने अपने वाइफ का लोन ले लिया. तो लाइबिलिटी ले लिया तो कहीं ना कहीं फर्म के ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई कि अब उसे ये पेमेंट करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स को. और पार्टनर्स के लिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए तो उनके लिए फ़ायदा होगा. सो यू नो वेरी वेल ड्यूल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट. तो किसी के लिए प्रॉफिट है, किसी के लिए लॉस होगा. सो you can see that all the things which are transferred from the realization account, it will posted to the partner's capital account with the name of realization. ये बात याद रखिएगा, किसी भी पार्टनर ने अगर एसेट्स ली है, लाइबिलिटी ली है, तो वो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के नाम पे शो ऑफ नहीं होगा, वो रिलेशन अकाउंट के नेम से शो ऑफ होगा. तो यू कैन ईजिली सी दैट ए ने बिल्स पेबल टेक ओवर किया था बाई रियलाइजेशन, बी ने वाइफ्स लोन टेक ओवर किया था, सो बाई रियलाइजेशन, एज वेल एज ए ने फर्नीचर टेक ओवर किया था, सो इट विल बी राइट डाउन टू रियलाइजेशन. एज वेल एज सी ने भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स टेक ओवर कर ली थी 7,000 रुपीज़ की, सो उसको राइट डाउन किया. सो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस लिखा, सेकेंड वन हमने लिखा एक्यूमुलेटेड लॉसेस, थर्ड वन हमने क्या लिखा, रियलाइजेशन पे लॉस. एंड देयर आफ्टर all the assets and liabilities taken over by the partner, it should be recorded in the books of account. So उसको भी हमने अपने books of account में रिकॉर्ड किया in the partners capital account. अगर partners ने assets ली है तो it will be posted to the debit side of the capital account. If partner take over the liabilities, so it will be posted to the credit side of the relation accounts. Okay, so now you can see that after the preparation of the partners capital account, so you can take the balance. तो यू फाइंड डेट कि ए और बी के पास 76,000 80,000 का बैलेंस था. एंड आफ्टर द डिडक्टिंग द पेमेंट्स ए एंड बी गेट 51,640 एंड 57,240 फ्रॉम द फर्म. यानी ए और बी को पैसा मिलेगा, वेयर एज सी को 26,380 रुपीज़ लेकर आना पड़ेगा.
बिकॉज सी की ऑलरेडी नेगेटिव कैपिटल थी, और ये मैंने आपको पिछली बार बताया भी था लास्ट वीडियोस में कि अगर किसी पार्टनर की नेगेटिव कैपिटल होती है, सो इन सच केस एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन जनरली उसे पैसा लेकर ही आना पड़ता है. ओके, so now at the end of this question let's we prepare the bank account. So you know very well how we will prepare the bank account. So you can see that कि मैंने आपको पहले ही हिंट दिया है. So आप यहाँ देख रहे हो कि you have a bank overdraft. Bank overdraft is a negative balance, so it will be write down the credit side of the bank account. ये पहले बात याद रखिए. So उसे हम उसमें लिखेंगे. दूसरा, आप अपने रिलेशन अकाउंट में देखिए बैंक्स की इंट्रीज कहाँ कहाँ हुई हैं, यानी पैसा कहाँ कहाँ आया है. सो बैंक्स के थ्रू यहाँ पेमेंट हुआ है फॉर द बिल डिस्काउंटेड, और यहाँ बैंक्स के थ्रू पैसा आया फ्रॉम द सेल ऑफ एसेट्स एंड रिकवरी फॉर बिल डिसऑर्डर. तो ये दोनों चीज़ें बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगी एंड दिस थिंग्स विल बी क्रिएटेड इन द बैंक अकाउंट. एंड आफ्टर डैट यू कैन सी डैट द कैपिटल अकाउंट, सी ने पैसा लेकर आया है, सी विल ब्रॉट इन द कैश अमाउंट थ्रू द बैंक, सो इट विल बी अ रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट. वेयर एज ए एंड बी को पेमेंट करना पड़ेगा फर्म को एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, सो इट विल पोस्ट टू द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक अकाउंट. So when we see that the bank account, you can see that first of all we write down the opening balance of bank. Okay, thereafter we write down the amount recovery from the assets. Second amount, record the debit side, that is the recovery from the bills receivable discounted. The third one is a C ने पैसा लेकर आया 26,380 and in the payment side you can see first of all हमने बैंक को पेमेंट किया था फॉर द बिल डिस्काउंटेड. थर्ड हमने पे किया था क्रेडिटर्स को 28,500 रुपीज़ का, एंड एट द लास्ट वी पेड द अमाउंट टू ए एंड बी फॉर हिज कैपिटल, दैट इज़ 51,640 and 57,240. सो वी कैन सी दैट इन द बैंक अकाउंट वी रिकॉर्ड ऑल द रिसिप्ट्स and all the payments at the time of dissolution of the partnership firms. And in all the question you can see that ki the both side of the bank account or cash account is equal, are equal, and which prove the arithmetical accuracy of the books of account which are prepared earlier, that is a relation account, partners capital account or cash or bank account. So now we will move to the next topic of this chapter. The next topic of this chapter is balance sheet on the date of dissolution not given. You know very well जब कोई फर्म डिज़ोल्व होती है तो अभी तक हम लोग जिस तरह के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, उन सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से two important information is given. The first one is the balance sheet of the firm is given, as well as the important adjustment and important information related to the dissolution of the firm is given. So कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, some of the question when there is a no information about the balance sheet. So in this situation, first of all, before preparing a realization account, partners capital account, partners loan account or cash or bank account, first of all we prepare the balance sheet, that is known as the memorandum balance sheet, and after that we prepare the necessary account at the time of dissolution of the firm. यानी जब किसी क्वेश्चन में फॉर्म डिज़ोल्व हो रही होगी और उस क्वेश्चन में डिज़ोल्यूशन की डेट की बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उस इंफॉर्मेशन से हम एक मेमोरेंडम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद द 4 इम्पॉर्टेंट नेसेसरी अकाउंट्स भी प्रिपेयर करेंगे. सो द इलस्ट्रेशन नंबर 12 इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. द टॉपिक इज बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिज़ोल्यूशन नॉट गिवन. द क्वेश्चन इज Brahma, Vishnu and Mahesh are in partnership sharing in 3:4. They decided to dissolve the partnership firm. At the date of dissolution, their creditor amounted to 16,000. यानी आप देख रहे हैं कि they are 3 partners और partners की जो profit sharing ratio है वो है 3:4. और जिस दिन डिसोल्यूशन है उस दिन क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज़ है 16,000 रुपीज़ की, एज वेल एज द कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दैट इज 2,650 नॉट ब्रॉट इन टू द अकाउंट्स मैच्योर्ड एंड हैड टू बी मेड. यानी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी थी 2,650 रुपये की, एंड यू नो वेरी वेल कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ को हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते, लेकिन हमें इसे पे करना है तो रिलेशन अकाउंट में हम पे करेंगे. कैपिटल, रही बात कैपिटल की, तो यू कैन सी डैट द कैपिटल ऑफ ब्रह्मा विष्णु एंड महेश दैट इज 12,000, 10,000 एंड 8,000, एज वेल एज विष्णु हैड लेंट टू द फर्म, मीन्स विष्णु ने फर्म को लोन दिया हुआ था.
इन एडिशन टू कैपिटल, कैपिटल के अलावा वो अमाउंट थी 14,000 एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन द एसेट्स रियलाइज 40,150. Prepare relation account and partners capital account and also show the cash account. So if the balance sheet on the date of dissolution is not given in the question, so first of all the balance sheet in proper form should be prepared in order to find out the missing figures. And this question बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज द फिगर ऑफ सन्ड्री एसेट्स ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन. यानी इस क्वेश्चन में आपने देखा कि जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी उस इन्फॉर्मेशन से हमने क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड किया, विष्णु के लोन को रिकॉर्ड किया, ब्रह्मा विष्णु एंड महेश की कैपिटल्स को रिकॉर्ड किया इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. एंड वी फाइंड दैट द टोटल लाइबिलिटी साइड रिप्रेजेंट द वैल्यू इज 60,000 एंड एसेट साइड की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी. सो यू नो वेरी वेल द लाइबिलिटी इज इक्वल्स टू द एसेट्स. तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी सन्ड्री एसेट्स आई 60,000. सन्ड्री एसेट्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस दिया है कि सन्ड्री एसेट्स हमें रियलाइज कितना हुआ. सो व्हाट इज़ द बुक वैल्यू ऑफ द सन्ड्री एसेट, दैट इज 60,000. सो हमने बैलेंस शीट बना ली. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द मेमोरेंडम बैलेंस शीट विच आर एग्जैक्टली सेम इन द फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट गिवन इन द क्वेश्चन. देयर आफ्टर यू नो वेरी वेल वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट में यू नो वेरी वेल कि सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रांसफर दी एसेट्स to the debit side of the relation account, their book value, and thereafter we transfer the external liability, that is a creditor, in the credit side of the balance sheet. So मैंने पहले उसको ट्रांसफ़र कर दिया assets को, creditors को at their book value. Thereafter we find that कि हमें क्या क्या realization हुआ. So you can see that in this question के assets से हमें realize हुआ 40,150 रुपीज़ realized हुआ. एंड मुझे क्या क्या पे करना है, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का 2,650 रुपीज़ पे करना है और क्रेडिटर्स का 60,000 है. क्योंकि आप यू नो वेरी वेल व्हेन देयर इज़ एनी नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेमेंट ऑफ द एक्सटर्नल लाइबिलिटी, सो वी विल पेड इन फुल. सो हम उसको पूरा पेमेंट करते हैं. सो इन दिस क्वेश्चन यू कैन सी दैट वी पेड द अमाउंट टू द क्रेडिटर 16,000 एंड पेड the amount of contingent liability, that is 2,650. The total amount paid to the creditor and contingent liability, that is 18,650, and we realize from the asset, that is 40,150 from the assets. And after that, इन चारों चीज़ों के बाद after that we find the profit and loss on the realization. So we find the 22,500 on the loss on realization. Yes, so it will be distributed by Brahma, Vishnu and Mahesh in their profit sharing ratio, and profit sharing ratio is 3:3:4. So इस प्रॉफिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश में. सो 2:2:4 के अकॉर्डिंग इनका प्रॉफिट आया, दैट 6,750 फॉर ब्रह्मा, 6,750 फॉर विष्णु एंड 9,000 फॉर द महेश. So after the preparation of realization account, now we will move to the partners loan account, because in your balance sheet a specific loan given by the partner, that is 14,000, और लोन को हम पे भी करेंगे at the time of dissolution. So first of all we write down the opening balance of the loan account of Vishnu, that is 14,000, and thereafter we paid the amount to the Vishnu for his loan, that is 14,000. Okay, so in this question first of all we prepared the memorandum balance sheet, thereafter we prepared the relation account, thereafter we prepared Vishnu loans account, and thereafter we prepared the capital account. Capital account का भी preparation भी एकदम same as it is वैसे ही होगा. So capital account you know very well कि capital opening में कितनी है ब्रह्मा, विष्णु and महेश की. The Brahma is 12,000, Vishnu is 10,000 and Mahesh is 8,000. It is the opening balance of capital and shown in the credit side of the partner's capital account. In the realization account there is no any liabilities and assets taken over by the partner. So रिलेशन अकाउंट से कोई भी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं होगी. एंड एज अ मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ दिस कि यू कैन सी डैट कि क्या कोई लाइबिलिटीज़ और एसेट्स में कोई ऐसा पार्ट है दैट इज़ द डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और accumulated profit and loss and reserve which are distributed by the old partner in their profit sharing ratio. So we can see that in the balance sheet इस तरह की कोई information given नहीं है. So we will move to the partners capital account. So first of all we write down the opening balance of the partners, 12,000 for Brahma, 10,000 for the Vishnu and 8,000 for the Mahesh. Thereafter we find out the loss on the relation, क्योंकि relation पे loss हुआ था. Brahma beared 6,750, Vishnu bear 6,750 and Mahesh bear 9,000. So after the
बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वी फाइंड दैट कि ब्रह्मा को पे करना है 5,250, विष्णु को पे करना है 3,250, बट महेश ब्रॉट अमाउंट इज़ 1,000, यानी ब्रह्मा एंड विष्णु को हमें पे करना पड़ेगा इन द फाइनल पेमेंट टू कैश, बट महेश को अमाउंट दिलाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, दैट इज़ 1,000. सो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, at the last we prepared cash or bank account. So how we prepare the cash or bank account? So first of all you can see the balance sheet. In this balance sheet there is a no opening balance of the cash or bank. So you are free to prepare the cash or bank account. आप फ्री होगी आप कैश अकाउंट बनाओ कि बैंक अकाउंट बनाओ. सो क्योंकि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, सो हमने बेसिकली प्रेफर किया है कैश अकाउंट को, क्योंकि एसेट्स में कोई ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं है कि सन्ड्री एसेट्स में हमें इतना पैसा मिला है कैश का है और इतना पैसा बाकी चीज़ों का है. तो ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है कैश का, सो ओपनिंग बैलेंस नहीं है. रही बात रियलाइजेशन अकाउंट में, तो यू कैन सी डैट कि यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन हुआ है. वी पेड द कैश टू द क्रेडिटर 16,000 एंड 2,650 एज अ कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी एंड इट विल बी पोस्टेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश अकाउंट. As well as we receive a cash from the realization of the sundry assets, that is 40,150, and it will be posted to the debit side of the cash account. Next is in the Vishnu loan account, you can see that we paid the amount to Vishnu for his loan, that is 14,000, so it will be posted to the credit side of the cash account. Thereafter when we take the balance of the capital, so now we find the कि we paid the amount to the Brahma and Vishnu for his capital, that is 5,250 for Brahma, 3,250 for the Vishnu, but 1,000 brought by Mahesh at the time of dissolution because his capital is not adequate. So after analyzing all the things related to the cash received and cash payment, now we will move to the preparation of the cash account. So we can see that the assets realized through the cash, that is 40,150, and as well as Mahesh brought 1,000 at the time of dissolution. So total फॉर्म में कैश आया 41,150 और कैश कितना कितना गया 18,650 लाइबिलिटीज़ को पे किया गया, 14,000 विष्णुस का लोन पे किया गया, 5,250 पे किया गया ब्रह्मास की कैपिटल एंड 3,250 पे किया गया विष्णुस की कैपिटल. So we receive a 41,150 from the assets realization and from the Mahesh, and we pay the cash for the liabilities for Vishnu's loan, for Brahma and Vishnu for his capital. So the total of the cash account will be equal. So now it is verified कि हमने जो भी बैलेंस शीट बनाई थी, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था, लोन अकाउंट बनाया था एंड कैपिटल अकाउंट बनाया था, it is a arithmetical correct. So now we completed the two question of today's topics. That the first one is a journal entries, important journal entries at the time of dissolution of the firm, as well as the second topic of this chapter, that is a balance sheet on the date of dissolution not given. यानी सिचुएशन में इंफॉर्मेशन में क्वेश्चंस में बैलेंस शीट गिवन नहीं होती. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, एंड देयर आफ्टर वी प्रिपेयर द रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड कैश और बैंक अकाउंट. सो आई होप टुडे वी क्लियर्ड ऑल द डाउट्स एंड ऑल द थिंग्स वेरी ईजली. सो वन मोर थिंग फॉर यू, बिकॉज ये चैप्टर के सारे टॉपिक्स तो लगभग ख़त्म होने वाले हैं. सो वन क्वेश्चन फॉर यू for your practice, the illustration number 13. So please solve this question and take a screenshot of this question, the illustration number 13, and please solve it. इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, एंड देयर आफ्टर यू प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट. सो इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बेसिस यू कैन पहले आप इसको पहले तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, डिक्टेट कर लीजिए, एंड देयर आफ्टर you prepared a memorandum balance sheet, because in this question there is no information about the balance sheet on the dissolution of the partnership firm, and after preparing the memorandum balance sheet you will prepare the relation account very easily. So I hope you cleared all the topics very easily in today's video class. In the next video we will move to the last topic of this chapter,
that is a adjustment related to the realization expenses. There are various cases related to the realization expenses as well as the practical problems related to the realization expenses as well as the specific journal entries जो बोर्ड एग्ज़ाम में आती हैं इस चैप्टर में. जनरली डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म में जर्नल एंट्रीज को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है. सो इन द लास्ट वीडियो वी विल मूव टू द last topic of this chapter. The first one is the realization expense, the different condition related to the realization expenses, and second one is the specific journal entry at the time of dissolution of partnership form. So आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.